So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'll be continuing with my analysis of Medical Science Paper 1. Now, I'll analyze Section B. How was it? This is, as you know, our second year subject. Now, the paper pattern has changed a lot. As I mentioned earlier, like an MCQ exam, in their quest to ask more and more, they are asking now this 5 plus 5, this pattern. The idea is to cover the maximum number of topics, which frankly was a bit irritating, especially in the pharmac part, and I'll explain why. So let's get started. The first question: enumerate the topical antifungal drugs along with their indications and side effect. Question is printed here. Now in this much area you have to write, you have to enumerate, you have to write their indications, side effects. This was a challenge for me. Moreover, the question is very straightforward. Unlike in pharmac, what you usually do, mention the mechanism of action so that you can get some marks, and then side effects तो end में जितने याद आए. एंटीफंगल बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, बट इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली टॉपिकल एंटीफंगल पूछा. Yes, it was in topic, but I kind of gave it a skip. So it was a tough question for me. Happy with a 2 or 3, even a 1. Now, name anti-helminth drug used in treatment of neurocysticercosis. Simple answer आपको लिखना है albendazole and praziquantel. Easy है, but who will score extra marks? पूछा नहीं है, आपने डोज मेंशन कर दी, आपने कितने टाइम मेंशन कर दिया, कब तक लेनी है, ये सब आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर दिलाएंगे, लेकिन स्टिल अ टफ क्वेश्चन. फार्मैक का सेक्शन इज टफ, आई थिंक. Once again, this 5-5 business. Make a schematic flowchart of pathogenesis of Salmonella. Now, one can argue that this first part is easy. 2 important categories of drug resistance. This is mentioned in textbook. आप mention कर भी सकते हो, लेकिन examination hall में this is a moderate to tough question for every medico. Yes, Salmonella is a part of a important topic list, but why ask it? Then lympho-reticular system schematically represent the process of B cell maturation. Immunology है syllabus का part, clearly mentioned है, but इसमें पिछले 2-3 सालों तक तो hyper sensitivity छा रखा था, but इस बार नहीं. They have gone for this. See, this is something once again which is important, which everybody knows, but there was no edge which you can gain from this question, because everybody will end up writing the same thing in this question. So this सब में भी अपना normal 2-3. Now, what are the risk factors for lung carcinoma and the 3 major histological types of lung carcinoma? See, lung carcinoma expected था इस साल, but उन्होंने question इतना specific पूछा है, and for a 10 marker they have asked lots and lots of things. Not only risk factors, आपको तीनों की 3 major describe the morphological features. You have to draw 3 histology. Morpho में of course microscopic तो आएगा ही, gross भी mention करना है. So gross वाले section में I wasn't very good. So an average attempt 5 on 10 I think. Describe the classification of cervical intraepithelial neoplasia. HPV का, if you just remember E6, E7. If you can see, both of these topics are from cancer वाला topic, which is mentioned separately in the syllabus also. Benign and malignant cancer का difference, and of course दोनों cancers तो mentioned है ही. So pathology का, लेकिन I'll still say this. See, अभी तक 10 marks का they've asked what? Pharmac. 10 marks का they've asked micro. Patho they've asked for 20 marks, and this is easy to moderate for me at least, because both cancers were asked, though it is not very easy because यहाँ पे gross वाला section recall करना was tough. And once again, for 2 pages, that's the only issue in medical science. You have to carefully measure each and every word of yours, because इसमें आप पहले classify करोगे, उसमें ही मतलब आपका ये वाला पेज चला जाएगा. सेकंड पेज में फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करोगे तो E6, E7 कैसे एग्जैक्टली हो रही है पैथोजेनेसिस. स्पेस मैनेजमेंट वाज एन इशू इन दिस पेपर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. देन क्लासिफाई पॉइजन्स बेस्ड ऑन चीफ सिम्टम्स. लीगल ड्यूटीज जेनरिक पॉइंट, आई थिंक एवरीबडी नोज. अनलाइक हाउएवर लास्ट ईयर स्टेनिंग ऑफ इंजरीज पे था, ब्रेन डेथ्स पे था, दिस टाइम दे हैव बीन काइंड इनफ दैट द FMT सेक्शन फॉर 10 mark इज moderate because if you have read it, well and good, but mostly generic points, information, inform the police, keep the evidence, etc. So I don't think so anybody, of course somebody loves FMT, hardcore FMT वाला बंदा है, they might be able to answer it nicely, but ठीक है. But this was tough, this was moderate to tough.
Compared to the compulsory question in the previous section, this section I found it tougher, especially these questions, the first, second, third. This 15 marker will bring down the average. So इस question में भी अगर 25 plus तक ही पहुँचेंगे. This is not a 30 plus question for me at least. This question I did not attempt, but let's have a look. Leukemia. Last year भी leukemia पे question था. Leukemia is important, kind of ignored. Medicine में भी है ल्यूकीमिया का टॉपिक. सो और कुछ ना हो, ल्यूकीमिया अच्छे से करके जाना है हमें. दैट्स द ओनली टेक अवे. CML बाकी वैसे इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट ल्यूकीमिया. CML और AML ही पढ़ के जाते हैं. लास्ट टाइम ही पूछ लिया था उन्होंने. ALL पूछा था या CLL, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट दिस वॉज वंस अगेन एक्सपेक्टेड. रॉबिन्स का टेबल है, वहीं से उठा के दिया है. इफ़ यू हैव done Robbins, this 5+5 was a very easy question. This was a 6 or 7 wala question, but of course the first part not so much. Explain why beta blockers should not be given to individuals with diabetes. This is also easy. Always we have done this. They mask the symptoms because beta 1 और beta 2 से जो symptoms मिलते हैं, जो hypoglycemia का reversal होता है, वो सब नहीं हो पाता, इसलिए easy. This is also easy. So इस क्वेश्चन में 20 मार्क्स का तो अभी तक ईजी है. ल्यूकीमियाज भी ऐसे कोई पढ़ के क्या होता है. दिस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट ईजी. द ओनली रीजन वाई आई डिडंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वॉज बिकॉज ऑफ दिस. मल्टीपल क्रॉप्स ऑफ वेसिकुलर रैश स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फेज स्प्रेडिंग टुवर्ड्स ट्रांसमिशन. क्या हो सकता है? मोस्ट प्रॉबली क्योंकि हर्पीज क्वेश्चन का पार्ट है तो चिकन पॉक्स लगा था मुझे. आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर. आई हैवंट लुक्ड द पेपर अगैन, बट हो सकता है. लेकिन आई वॉज नॉट वेरी श्योर विद द डायग्नोसिस, सो that's why I skipped this question. But once again, easy and a manageable question. ये वाला भी. Malarial parasite. मलेरिया पेपर 2 में भी बहुत आया है इस बार. मलेरिया इसमें भी आया. मलेरिया आराम से हो सकता है. मलेरिया एंटी मलेरियल एक दूसरे क्वेश्चन में भी है. So this question was easy, but just because of this not being very sure of the diagnosis, I skipped this. But this, if somebody has done nicely, is a 30+ question. बस हाँ, ऑफ कोर्स मेरा ल्यूकीमिया भी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट्स वाई आई स्किप दिस क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड. ड्राउनिंग, दिस वॉज बाउंड टू कम. इफ़ यू आस्क मी, देयर वर 2 टॉपिक्स विच आई वॉज 100% श्योर आई विल सी इन दिस पेपर. वन वॉज जॉइंट्स, जो आया है 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, पार्डन मी, इससे पहले वाले सेक्शन में. एंड इस सेक्शन में 15 मार्क्स का जो ड्राउनिंग आना ही आना था, एक्सपेक्टेड था. पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स भी थी, मतलब दिस कुड बी मेंशन. ऑफ कोर्स कोई पढ़ के ना गया हो, सो दिस इज impossible to attempt. But if you have 4 methods भी, ड्राई ड्राउनिंग क्या होती है, इमर्शन सिंड्रोम क्या होता है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या होती हैं, पोल्थोस हैमरेजेस क्या होते हैं, यूनेस साइन क्या है, डायटम टेस्ट HNO3 का यूज़ करके यू सी फॉर डायटम्स प्रेजेंस इन बोन मैरो ऑफ एक्टिव सर्कुलेशन वाइल डेथ. ठीक है, 15 मार्क्स, वेरी गुड. इसमें जितना भी हाईएस्ट एग्जामिनर दे 10-11 should be able to score. This question, enumerate 4 major primary glomerulonephritis. ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पोस्ट इन्फेक्शियस, ईजी क्वेश्चन. पढ़ के जाते हैं. हर साल किडनी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक तरीके से पैथो में. इन जनरल भी हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी किडनी इज द किंग, रॉबिन्स पार्ट 2 में. सो एक्सपेक्टेड लाइन्स में था. ओनली चैलेंजेस 10 मार्क्स का ही पूछा है. पहले ही कभी कभार ये 15 या 20 मार्क्स का आ रहा, तो good old days as they say, but ठीक है, easy question. This question, the first part, I'll be very honest, I wasn't very sure of, but the second part I was 100% sure of. Wound by primary intention, ठीक है, हमें पता है exactly क्या होता है, but I was not very happy with my attempt. I'll just score 1 to 2 marks, but इस वाले में I should be able to score 3 to 4 marks. ठीक है, 5+ आ जाना चाहिए. Now, Pharmac, इस section का भी somewhat easy. डिस्क्राइब द रोल ऑफ नाइट्रेट्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है. IV भी दे सकते हैं, सबलिंगुअल भी देते हैं, पैरेंटरल, एंटरल, ब्ला ब्ला ब्ला. साइड इफेक्ट्स, माइग्रेन एक जो सबको याद रहता है, नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, मॉडरेट है. चैलेंज, वंस अगेन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है. इतने से पेज में आपको रोल डिस्क्राइब करना है, रूट भी मेंशन करना है, साइड इफेक्ट्स भी मेंशन करने हैं. तो 3 सब पार्ट हो जाते हैं. स्पेस मैनेजमेंट, अ चैलेंज, बिकॉज यू कांट इवन कट इट, राइट, अनलाइक अ मॉक टेस्ट जहाँ पे एक्स्ट्रा पेज अटैच कर सकते हो. तो जो लिख दिया है वो लिख दिया है. थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स योर प्रेजेंटेशन रादर दैन योर नॉलेज इन दीज 5 मार्क्स. ऑफकोर्स नॉलेज तो होनी ही चाहिए, बट एक प्रेजेंटेशन भी इज वॉट विल डिस्टिंग्विश अ 3 मार्क्स फ्रॉम 4 मार्क्स आउट ऑफ 10.
नेक्स्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्जीनाटाइड, ओके सब पढ़ते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट वगैरह जो भी हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, उतना पॉपुलर नहीं था बट ओरल एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग्स में थोड़ा बहुत हमने इसका पढ़ रखा है, इसके बारे में, कैन बी टैकल्ड। एडवांटेजेस आर्टेमिसिन, इससे क्या सिंपल वर्ड जो आना चाहिए, रिक्रूडेसेंस हैज डिक्रीज, इजी क्वेश्चन काइंड ऑफ। मलेरिया इस बार एज आई मेंशन्ड यहाँ भी पूछा है, पेपर टू में भी है, सो लेट्स हैव अ लुक। कीपिंग दिस क्वेश्चन असाइड, keeping the subpart aside, this question can give an individual 25 plus till 30 आ सकते हैं इस क्वेश्चन में आराम से। had this part been good even I might have scored 30 but ठीक है 27-28 तक भी decent attempt। now see पोलियो आएगा, ये पता था सबको, बट इस एस्पेक्ट में आएगा ये नहीं पता था। क्वेश्चन इज मोर PSM than micro. Of course you'll open the textbook, this is mentioned in the textbook, but exam से पहले you can only refer your own notes, not the textbook। tough question है, especially second part, environmental surveillance preventive strategies for effective maintenance, जो भी सबको एग्जामिनेशन हॉल में समझ में आएगा वो मेंशन कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा थिंग ये भी मेंशन कर सकते हैं कि दोज हु आर गोइंग टू कंट्रीज इन विच पोलियो इज एंडेमिक, सो यू विल गिव देम OPV। एक ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा था जो मुझे याद है एग्जामिनेशन हॉल में, बाकी सब ने सेम ही चीज़ लिखी है। मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्रिप्टोकोकस, एक फंगस पूछनी रहती है, क्रिप्टोकोकस एक्सपेक्टेड थी। पूछ रहे हैं कि नेगेटिव स्टेनिंग इंडिया इंक से उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, बट एक और चैलेंज वंस अगेन, मोड भी पूछा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी पूछी, रोल रैपिड का भी पूछा, कन्वेंशनल का भी पूछा, स्पेस मैनेजमेंट इज़ दी ओनली चैलेंज। बट ओके इन दोनों क्वेश्चन में 5 इज 10+ होपफुली। ग्रीवियस हर्ट टेक्स्ट बुक FMT में पूरे सेकेंड ईयर में जब हमारे टाइम में था तो यही पढ़ते थे। कॉन्ट्यूशन का भी ईजी है, दिस क्वेश्चन इज ईजी, दिस टाइम FMT वॉज relatively good for a student's point of view. Various tests prescribed for blood and seminal stains. Now this is a easy question, but after the examination I think this has been picked up from a particular guideline जो इंडियन गवर्नमेंट की होगी, so this makes it more typical because उनको स्पेसिफिक चीज़ें सुननी है। Of course ब्लड और सेमिनल स्टेन्स पे क्वेश्चन हर साल आता था, हम बार वेरियस टेस्ट यही येलो दिखाते ही थे हमेशा, लेकिन ये जिस गाइडलाइन से पूछा है उसकी पिन पॉइंट आपने गाइडलाइंस लिखेंगी, सो यू स्कोर 6 और 7, बट वैसे 4 और 5 तक तो खींचा जा सकता है। नाउ दिस एन्यूमरेट ड्रग्स यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये आता है हमें, इसमें आ जाने चाहिए, बट वंस अगेन एन्यूमरेट भी करो, रूट भी बताओ, साइड इफेक्ट्स भी बताओ, आज एक पेज में टफ ये बनाता है इस क्वेश्चन को। ड्रग्स डोसेज ड्यूरेशन, इंटर्नशिप में कई लोगों ने ये लिया भी होगा, सो आई वॉज अवेयर ऑफ द ड्रग्स ड्यूरेशन, अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन हॉल में डोसेज याद नहीं आया, सो दिस मेक्स इट 2 वाला अटैम्प्ट रादर देन 3 और 4, बट ठीक है मैनेजेबल है। अभी लेट्स रिव्यू द कंप्लीट पेपर वंस अगेन। सो इफ आई लुक एट द फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन ईजी था, लेकिन दिस क्वेश्चन वंस अगेन विल ड्रॉप डाउन द एवरेज, तो यहाँ से हर एस्पिरेंट को 3-4 मार्क्स का नुकसान होगा। और ये ऑब्लिगेटरी में पूछा गया है, सो यू कांट स्किप इट, सो यहाँ पे क्लियर कट लॉस हो चुका है एस्पिरेंट को। द सेकेंड क्वेश्चन समवॉट ईजी, बट यू नो फॉर मी दिस वॉज टफ। इवन जहाँ भी लेबल डायग्राम आए वहाँ पे आपको बहुत अच्छा ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज द स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई फॉर प्रोफेसर्स, सो अ टफ, नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में भी 30+ स्कोर करना मेरे हिसाब से मुश्किल है इस वाले क्वेश्चन में। सेकेंड वाला ये आई एडमिट एक्सपेक्टेड लाइन्स में है, बट द सब पार्ट्स एंड द क्लिनिकल नेचर ऑफ इट मेक्स इट अ बिट टफ। मोरोवर दे आर आस्किंग स्पेसिफिक थिंग्स जो टेक्स्ट बुक में मैंशन रहती हैं, आप यू कैन समटाइम्स बीट अराउंड द बुश, but you're not able to directly address the demand of the question, which leads to low marks. Okay, this one somewhat easy, this also somewhat easy, but in the examination setting this question is also maximum 30+, I don't think so किसी का आएगा इस question में, 27-28 में होवर अराउंड करेंगे सबके सब जिन्होंने अटेम्प्ट किया है।
ओके नाउ दिस वाज फॉर मी द इजीएस्ट पार्ट. ठीक है, पूरे पेपर का दिस फर्स्ट सेक्शन. सेकंड वाला नॉट सो मच, बट इस क्वेश्चन में भी इफ समबडी इज वेल प्रिपेयर्ड somebody can score 30. So overall though section A seems quite manageable, but maximum one can attempt 3 questions and 2 I am saying a 30 plus, which makes it 60 plus. लेकिन इस question में you will be stuck at 26 27. So maximum इस section में 87 90 के ऊपर जा ही नहीं सकता. So I am dead sure जितना भी कट ऑफ रहेगा इस सेक्शन को जिसने भी अटेम्प्ट किया है दे समवेयर होवर अराउंड 85 82 86 ऐसा ही कुछ रहेगा स्कोर सेक्शन ए, प्रोवाइडेड यू हैव अटेम्प्टेड ऑल 3. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन वेयर वी दिस ईयर दिस सेक्शन वाज वेरी इरिटेटिंग फॉर द सिंपल फैक्ट लास्ट ईयर भी बहुत पूछा था, इससे पहले भी हिमायत के फिजियो के क्वेश्चन है. इन देयर क्वेस्ट टू आस्क मोर एंड मोर एज आई मेंशन्ड हियर, एमसीक्यू टाइप पूछने के लिए, ज़्यादा टॉपिक कवर करने के लिए. सो फार्मैक का अगर आप नेट वेटेज देखोगे तो बहुत लो है पेपर में. 10 मार्क्स का यहाँ है, बाकी देयर इज नो 15-20 मार्क का फार्मैक का. लेकिन दे हैव आस्क्ड नियरली 7 to 9 टॉपिक्स फार्मैक के सिलेबस से. तो ज़्यादा पूछने इन देयर क्वेस्ट टू आस्क मोर एंड मोर दे हैव आस्क्ड सम एटिपिकल थिंग्स एंड दे हैव ट्राइड टू दे आर ट्राइंग टू गो फॉर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी which will bring down the mean compared to last year. But FMT of course this time has been better. So this question, this 5 marker 15 marker, in this question also rarely anybody can cross 30 plus. That's my take of course. Then coming to this question, okay, this was an easy question provided you are aware of AML and this. इधर क्योंकि if the diagnosis is wrong तो पूरा question गया, बट ओके मैनेजेबल है, इसमें आ सकते हैं 30 प्लस एज आई मैंशनड. नाउ द नेक्स्ट वन, दिस क्वेश्चन यस ओके 30 प्लस तक इसमें भी जा सकता है. लेकिन इसमें भी एक चीज़, ये वाला सब पार्ट इन माई केस एंड फार्मैक के स्पेसिफिक क्वेश्चंस विल ब्रिंग डाउन द एवरेज फॉर श्योर. सो 27 28 भी आए तो हैप्पी. 8th वाला दिस क्वेश्चन इज टफ, जो एवरेज को नीचे लेके जाएगा इस पूरे क्वेश्चन में. डोसेजेस वैसे इट्स समथिंग वेरी बेसिक, सबको पता रहते हैं, बट ठीक है इस क्वेश्चन में भी 30 प्लस वेरी रेयरली जाएगा. सो इफ़ यू लुक एट ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन 30 आई रियली डाउट जाएगा. लेकिन इसमें माई टेक इज़ इफ़ एनीबडी इज़ अटेम्प्टेड ऑफ कोर्स ऑब्लिगेटरी तो करना ही पड़ेगा सबको 5th वाला क्वेश्चन, बट उसके अलावा भी इफ़ यू अटेम्प्टेड एनी अदर क्वेश्चन, लेट्स सपोज 1 और एनी 2, सेम इतना ही रहेगा 85 या 90 मैक्सिमम स्कोर. माई टेक इज़ वोंट क्रॉस 150 in any circumstances, even with the best of the best candidates. 150 से ऊपर नहीं जाएगा. रियलिस्टिकली स्पीकिंग हाइएस्ट 140s में ही कहीं रहेगा, लो 140s. That's my take. As I've mentioned previously, in 2024 my score was 130, and if you look at the trend also, everybody is scoring lesser in paper 1, though this time paper 2 was also a spoiler, but we'll talk about it later. My score was 130. This year I'm expecting somewhere with the best of the best scenario, somewhere around 125 to 135. That's very high. Realistically I'll be somewhere in the range of 130. That's my take. So status quo has been maintained, but unfortunately in paper 2 the pattern has changed a bit, and we'll discuss it in the next video. The only take home message is go for more depth. Now this is very generic statement, but gone are the days when they are going to ask a 15 marker या 20 मार्कर पैथो में, जिससे आपको एकदम मज़ा आ जाएगा. दे हैव आई गेस नॉट आस्क्ड एनी 20 मार्कर इन दिस पेपर, एंड देयर इज ऑल्सो नो 15 मार्कर. विल जस्ट चेक अगेन. या इन दिस कंप्लीट पेपर देयर इज ओनली 120 मार्कर, जो पेरिनियम वाला क्वेश्चन है, एंड उसके अलावा देयर इज नो 15 मार्कर. इट्स ऑलवेज 10+5 या फिर इट्स 7+3. नाउ one might argue that since they're asking more and more, we need to broaden the horizon also, but depth is very important. Depth specifically for फार्मैक, क्योंकि फार्मैक पेपर सेक्शन बी का स्पॉइलर है मेरे हिसाब से. इस लास्ट टाइम एफएमटी था, इस टाइम फार्मैक वाज द स्पॉइलर. पिन पॉइंट चीज़ें पूछ रहे हैं, उसके लिए यू नीड डेप्थ एटलीस्ट इन फार्मैक.
Though ideal scenario should be focusing more on biochem, very high yield, especially in section A. Anatomy, no neuroanatomy this time. So next year, ho sakta hai. And anybody who says that the syllabus is less clearly hasn't written the examination, because on paper you will just see अच्छा 15 to 20 keywords हैं, क्या ये हो जाएगा, बायोकेम की छोटी सी लिस्ट है. नहीं होता है, ट्रस्ट मी, इट इज़ टफ. So think twice before opting for medical science. And if you've opted for it, please focus on both the papers equally. I committed the mistake of thinking that paper 2 is more scoring, but we'll get back to it later on. But this was tough overall, not a very easy paper. My take is किसी का भी 145 आ जाए तो should be very 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 happy. I'll be happy with a score of 132, 133 if I score at this time, or even with the status quo of 130, I'm happy. Those who have given the paper, please comment your score in the comment section. Tell me what do you feel was the level of the paper, and I'll see you in the next video. Thank you for watching.